Hello dear children, today we are going to start the topic of grammar called as active voice and passive voice. So before starting anything, we will see the example. Here in this picture you can see two sets of sentences which express same meaning. But only the difference is the first statement is written in active voice and the other statement is written in passive voice. So let us see the difference. The first statements, it is written, Alex wrote an essay about his grandfather's Alzheimer's. यहाँ पे आप देखोगे कि जो वर्ब है wrote, वो दिखा रहा है कि सब्जेक्ट के जगह पर जो पर्सन है वो कुछ कर रहा है. He is doing something, and what is he doing? He has written an essay about his grandfather's illness or grandfather's Alzheimer's. So that's what it is called as active voice. In the second sentence you can see that the verb of the sentence, it shows that something has been done to the person which is at the place of subject. इसमें जो was written जो verb है वो दिखा रहा है कि सब्जेक्ट की जगह पर जो मीन्स जो पर्सन मेंशन किया गया है उसके साथ कुछ किया गया, ना कि उसने कुछ किया. तो इट मीन्स हियर an essay is a subject and it is shown that an essay has been written by Alex. That's what the sentence is called as in passive voice. So let us see the further definition. Active voice means that a sentence has a subject that acts upon its verb. एक सिंपल सेंटेंस में हम कह सकते हैं कि जब सब्जेक्ट जो है वो कुछ करता है, जो डूअर की जगह पर होता है, तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे. एंड पैसिव वॉइस मीन्स दैट द सब्जेक्ट इज़ अ रेसिपिएंट ऑफ द वर्ब्स एक्शन. इसमें दिखाया जाता है कि सब्जेक्ट किसी के द्वारा किया गया, यानी वो जो एक्शन है वो किसी के द्वारा किया गया. So that's what it is called as passive voice. Now what is the difference between active and passive voice? Active voice, when the subject of a sentence performs the verb's action, we say that the sentence is in the active voice. इसमें दिखाया गया है कि जब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन में रहता है या वो कुछ करता है, so we say the sentence it is in active voice. That as it was given in that Alex wrote an essay on his grandfather's Alzheimer's. तो इसमें देखोगे कि सब्जेक्ट की जगह पे जो एलेक्स है उसको करते हुए दिखाया गया, उसको लिखते हुए दिखाया गया है. So here he is a doer of the statements and it is at the subject place. That's what the statement is in active voice. Now sentence in the active voice have a strong, direct and clear tone. Here are some short and straightforward examples of active voice. Like monkeys adore bananas, the cashier counted the money, the dog chased the squirrel. इसमें आप देखोगे कि monkeys जो कि सब्जेक्ट की जगह पर है वो डूअर की तरह दिखाया गया है कि he adores bananas. In the same way, in the second sentence also, you can see the cashier. He is also shown as the doer of the verb. It means what is he doing? He is counting the money. In the same way, in the third statement, you can see that the subject, that is dog, he is shown doing something. That what is he doing? He is chasing the squirrel. So everywhere, wherever you can see, the subject of these statements are doing and doing. So in the very simple way we should make out that when the subject it is shown as a doer of something, as a doer of the action, the statement will be called as in active voice. Now passive voice, a sentence is in passive voice on the other hand when the subject is acted on by the verb. इसमें स्टेटमेंट जो है, कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में तब कहा जाता है जब सब्जेक्ट जो है के साथ कुछ हुआ रहता है या सब्जेक्ट को किसी और ने किया रहता है. सो इट इज़ कॉल्ड एज पैसिव वॉइस.
It is always constructed with the conjugated form of to be plus the verb's past participle. और एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं पैसिव वॉइस में, उसमें जो वर्ब रहता है वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रहता है. पास्ट पार्टिसिपल मीन्स इट रिमेन्स ऑलवेज इन थर्ड फॉर्म. लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ पैसिव वॉइस. बनानास आर एडोर्ड बाय मंकीज़. उसमें आपने देखा था कि मंकीज़ एडोर्ड बनानास. उसमें मंकीज़ जो थे वो डूअर थे और वो सब्जेक्ट की जगह पर थे, और एडोर्स जो था वो फर्स्ट फॉर्म था और बनानास जो था ऑब्जेक्ट था. बट इन दिस सेंटेंस हाउ द चेंज हैज़ कम. Here you can see the bananas, the receiver of the action has come at the place of subject. यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि सब्जेक्ट के साथ क्या किया गया है. सेकेंड सेंटेंस में बनानास आर एडोर्ड बाय मंकीज़. मंकीज़ जो डूअर थे वो चले गए प्रेडिकेट की, वो चले गए ऑब्जेक्ट्स की जगह पर, और जो ऑब्जेक्ट था पहले सेंटेंस में वो आके यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पर ले लिया गया, और एडोर्स जो था वो अब आ गया है यहाँ पे आर ऐड होकर थर्ड फॉर्म में. चूँकि बनानास जो है प्लूरल होते हैं, प्लूरल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म में पैसिव वॉइस में इज़ एम आर यूज़ करते हैं. अगर सिंगुलर है तो इज़ और एम यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल है तो आर यूज़ करेंगे. और एडोर का थर्ड फॉर्म होता है एडोर्ड. सो इट विल बी रिटन एज बनानास आर एडोर्ड. चूँकि हमें दिखाना है कि किसके द्वारा किया गया तो हम यहाँ पे बाय यूज़ करेंगे. बनानास आर एडोर्ड बाय मंकीज़. इन द सेम वे in the first sentence in the previous example you saw, in the second statement it was written the cashier counted the money. उसमें कैशियर जो था वो सब्जेक्ट की जगह पे था, उसे करते हुए दिखाया एज अ डूअर दिखाया गया था. बट इसमें आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट जो कि मनी था ये यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह ले लिया है इसने, और काउंटेड चूँकि वो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में था तो यहाँ पे हम वॉज और वर ऐड करेंगे, और काउंटेड का थर्ड फॉर्म काउंटेड ही होता है, और एक्शन को किसने किया उसको दिखाने के लिए हम बाय को यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो ये लिखा जाएगा द मनी वॉज काउंटेड बाय द कैशियर. कैशियर जो डूअर था यहाँ पे ये आके ऑब्जेक्ट की जगह पर इसको लिखा जा रहा है. नाउ थर्ड वन, in previous example you saw that it was written the dog chased the squirrel. यहाँ पे the dog जो डूअर था इसकी जगह पर जो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस द स्क्विरल था वो उसको लिख लिया गया है. फिर चेस्ड चूँकि वो सिंपल पास्ट में था तो पैसिव वॉइस में हम वॉज और वर ऐड करेंगे, और चेस्ड का थर्ड फॉर्म चेस्ड ही होता है. तो इसका स्टेटमेंट लिखा जाएगा द स्क्विरल वॉज. अब चूँकि स्क्विरल एक स्क्विरल है तो वहाँ पे हम वॉज लगाएंगे. द स्क्विरल वॉज चेस्ड बाय द डॉग. नाउ here is a chart how to change the verb forms. Like in simple present, in the statement if there is subject plus first form of the verb which takes s or es. So in passive voice it will go as subject if it is singular, is or am. If it is plural it will be are, and the third form of the verb. In the same way in present continuous, in active voice if it is subject plus is, am, are plus ing form of the verb. In passive voice it will be subject is, am, are plus being, being, being plus third form of the verb. Like I am writing an essay, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कैसे लिखेंगे. An essay is being written by me. प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में हम लिखेंगे, अगर एक्टिव वॉइस में हैज़ और हैव है और थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में वही चीज़ हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. लाइक शी हैज़ संग अ सॉन्ग. तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक्टिव वॉइस है. जब पैसिव वॉइस में हम इसको चेंज करेंगे तो इसमें होगा अ सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय हर.
Now come to simple past. In simple past, in active voice, the formation will be subject plus second form of the verb plus predicate carrying object. So same, if we change it in the passive voice, it will come subject plus was or were according to the number of the subject plus third form of the verb. For example, he wrote a poem. यहाँ पे आप देखोगे ही सब्जेक्ट हुआ, रोट जो है सेकेंड फॉर्म हुआ, पास्ट टेंस हुआ, और अ पोएम जो है ऑब्जेक्ट हुआ, जो कि प्रेडिकेट का पार्ट होता है. अब उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अ पोएम को हम सब्जेक्ट की जगह पर ला देंगे. अ पोएम, चूँकि अ पोएम सिंगुलर है तो उसमें वॉज यूज़ करेंगे. अ पोएम वॉज रिटन बाय हिम. नेक्स्ट, past continuous. In active voice, the formation will be subject plus was or were plus ing form of the verb. So in passive voice, it will come as subject plus was or were plus being plus third form of the verb. Like she was singing a song. तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो कैसे लिखेंगे? अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग. यहाँ पे सिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है संग हो जाएगा. अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय हर. पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट का फॉर्मेशन एक्टिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट जो कि डूअर होता है प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और वही चीज़ पैसिव वॉइस में हो जाएगा सब्जेक्ट जो कि रिसीवर ऑफ द एक्शन हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. लाइक शी हैड मेड अ पपेट. तो यहाँ पे आप देखोगे शी हैड, यहाँ पे शी जो है डूअर है, हैड मेड जो है थर्ड फॉर्म है, अ पपेट जो है ऑब्जेक्ट है. तो जब इसको पैसिव वॉइस में हम करेंगे तो अ पपेट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा. अ पपेट हैड बीन मेड बाय शी की जगह हर हो जाएगा. Now simple future, the formation of simple future in active voice is subject plus shall or will or first plus first form of the verb. In passive voice, the formation will be shall or will plus be plus third form of the verb. Like I will make a toy. तो यहाँ पे आप देखोगे आई डूअर है, विल मेक जो है ये फॉर्मेशन हो गया एक्टिव वॉइस का. और जब इसको हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो कैसे लिखेंगे? अ टॉय विल बी मेड. मेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा? मेड. आई की जगह क्या हो जाएगा? बाय मी. उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव वॉइस में जो फॉर्मेशन होता है उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव और विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और पैसिव वॉइस में जो फॉर्मेशंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट प्लस शैल हैव और विल हैव प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. लाइक शी शैल हैव डन हर होमवर्क. यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक्टिव वॉइस में है, यहाँ पे डूअर को सब्जेक्ट की जगह पे रखा गया है. जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे? अ होमवर्क शैल हैव बीन डन बाय हर. यहाँ पे शी की जगह पे हर ऐड कर देंगे. उसी तरह से जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से चेंजेस आते हैं जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. तो यहाँ पे कुछ मॉडल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे कैन, मे, कुड, माइट, मस्ट, शुड, और उसके साथ क्या वुड, और उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं. लाइक आई कैन डू दिस वर्क, और शी मे राइट अ पोएम, शी कुड जॉइन द क्लास, शी माइट राइट एन ऐसे. तो ये जो आप देखोगे यहाँ पे जो भी मॉडल्स हैं उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया गया है. और जिसको अब जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो फॉर्मेशन होगा, पहले मॉडल्स लिखेंगे कैन या मे या कुड या माइट, मस्ट, शुड, उसके बाद हम बी ऐड करेंगे और उसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे. लाइक आई कैन राइट अ पोएम. तो यहाँ पे जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे? अ पोएम कैन, फिर बी अप्लाई करेंगे, कैन बी, फिर राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटन
by me. A poem can be written by me. उसी तरह से she may play a doll. तो यहाँ पे जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे? A doll may be played by her. तो इसी तरह से ये जो फॉर्मेशंस होंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स के लिखे जाएंगे. एक बात और नोट करने की ज़रूरत है कि बेटा जितने भी जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, जिस स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसी स्टेटमेंट को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. इनट्रांजिटिव वर्ब वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. थैंक यू चिल्ड्रन.